Hey everyone, welcome back to the channel. So in the today's video, I'm going to talk about important features of Indian population. ठीक है? So we are doing a playlist on the concepts of India's economy, जिसमें मैं इंडिया की population के बारे में बहुत सारे topics discuss कर रही हूँ. Upcoming videos में I'm going to talk about further problems like unemployment, poverty, etc. So let's talk about features. So which features are we going to talk about today? Before that, this video is going to be helpful for almost everybody, BBA, MBA, BCom, class 12th, 11th, जिनके पास भी Indian economy है, because a lot of features are going to be included along with the facts in this video. So let's start with that. सबसे पहले these are the features that I'm going to talk about. First is the birth rate and the death rate, then sex ratio, then population density, literacy rate and rural and urban population. ये 5 फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगी. व्हाट आर दीज फीचर्स, इनका मतलब क्या है, हाउ आर दे कैलकुलेटेड, इनका पर्पस क्या है कैलकुलेट करने का, एंड व्हाट इज़ द स्टेट इन इंडिया. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट विद दैट. फर्स्ट इज द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. बर्थ रेट इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000. नाउ कीप इन माइंड, लाइव बर्थ्स, जो भी स्टिल बॉर्न बेबीज होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते हैं. सो ओनली द लाइव बर्थ्स आर काउंटेड. Divide by the total population, multiply by 1000. Similarly is for the death rates. Number of people who die in a particular year divided by the total population, total average population of that year, multiply by 1000 gives you the death rate, right? So this is the stat in India. As you can see, 1891 से लेके almost 1960s के आसपास तक the birth rate is very very high. 40% के आसपास का birth rate है. The death rate, although has constantly started reducing, as you can see, in 1891, 44% death rate. So that was a very very high death rate. I can see one thing, 1951 के बाद death rate एकदम से कम हुआ है, from 27% to 18%. The reason is India got independence during this period. तो independence के बाद जब Indian government started working for the development of the country, तो India का health infrastructure, medical infrastructure improve हुआ, and the death rate subsequently fall, right? Today, as of a start of 2011, you can see birth rate 21% है, death rate 7% है. So death rate has reduced drastically. Birth rate भी reduce हुआ है, and we are on a path of further reduction. तो इंडिया की population मैंने previous videos में ही mention किया है कि almost stable हो जाएगी. So this is the birth rate and the death rate of India. Now the question is, why do we need to study birth rate and death rate? सबसे पहले ये दोनों जो macro economics variable हैं, ये हमें बताते हैं about the health infrastructure of the economy. एक कंट्री का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये बर्थ रेट और डेथ रेट से पता चलता है. बर्थ रेट एंड डेथ रेट बर्थ रेट गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं एजुकेशन बजट प्लान करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली इफ द किड्स आर बीइंग बॉर्न इन द इकोनॉमी, देन दे विल रिक्वायर एजुकेशन, एंड आफ्टर 20 years दे विल रिक्वायर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल. तो फिर उनके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना, ऐसी पॉलिसीज़ बनाना, ये मैक्रो इकोनॉमिक फीचर्स गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं टू डू ऑल दोज थिंग्स. सो दैट्स द इम्पॉर्टेंस टू स्टडी बर्थ रेट एज वेल एज डेथ रेट. मूविंग अहेड, फिर आता है सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो होता है नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेल्स मल्टीप्लाई बाय 1000. आई हैव रेड इन अदर सम बुक्स जहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स इज टू फीमेल्स को भी हम सेक्स रेशियो बोल सकते हैं. सो बेसिकली इट इज़ द रेशियो बिटवीन द टू डिफरेंट जेंडर्स. सो द क्वेश्चन इज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द सेक्स रेशियो. सबसे पहले सेक्स रेशियो को जेंडर रेशियो भी बोलते हैं. ये बताता है द फ्यूचर ब्रीडिंग पोटेंशियल ऑफ द पॉपुलेशन. एज अ लॉ ऑफ नेचर द सेक्स रेशियो शुड बी 50-50%. ये लॉ ऑफ नेचर है. तो अगर आपका सेक्स रेशियो 50-50% नहीं है, इट इज़ डिस्टर्बिंग. इट इज़ सो दैट टेल्स यू अबाउट द फ्यूचर ऑफ द ब्रीडिंग पॉपुलेशन. ठीक है, ये इंडिकेट करता है द सर्वाइवल चांसेस ऑफ मेल्स इज टू फीमेल्स. अगर फीमेल्स का रेशियो बहुत कम है, व्हाट आर द रीजंस. अगर मेल्स का रेशियो बहुत कम है, व्हाट आर द रीजंस. सो गवर्नमेंट को इन चीज़ों को स्टडी करने में हेल्प मिलती है, और ये पॉपुलेशन बैलेंस के बारे में भी बताता है. एज अ लॉ ऑफ नेचर इट शुड बी 50-50%, बिकॉज अगर ये बैलेंस्ड होगा तो फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ के चांसेस भी स्टेबल रहते हैं. तो इंडिया का सेक्स रेशियो कुछ ऐसा है. एज यू कैन सी 1901 there were 972 females per 1000 male, and this has constantly started reducing. as you can see 1991 तक ये reduce हो रहा है. 1972 it was 972, 964, 955. it is reducing. The reason is people were definitely preferring males over females. और इस टाइम पे अभी तक गवर्नमेंट ने
प्री बर्थ जेंडर टेस्टिंग को इलीगल नहीं किया था, राइट. सो व्हाट पीपल यूज टू डू इज दे यूज टू गो टू द लैब्स, दे यूज टू टेस्ट द बेबी बिफोर द बेबी वॉज बॉर्न, एंड इफ इट वॉज अ गर्ल चाइल्ड द बेबी वॉज बींग अबॉर्टेड. इसे हम फीमेल फीटिसाइड कहते हैं. तो इस टाइम पे फीमेल फीटिसाइड प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई थी, एंड इनफैक्ट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ 1970s 1980s ये फीमेल फीटिसाइड की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, विच इज़ वाई गवर्नमेंट लीगली बैंड the gender testing of a child before the child is born. So after that, as you can see, the sex ratio has started to improve. After that, it started to increase. Now it is 933 and 940, but still it is not a good gender ratio, right? बट दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द ओवरऑल इंडिया, ठीक है. बट हमें पता है इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं और सभी स्टेट्स आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. सो इंटर स्टेट पिक्चर कुछ और ही कहती है. हियर आई हैव टेकन अ पिक्चर फ्रॉम अ बुक. एज यू कैन सी, Kerala में gender ratio is 1084. That means number of females are more than the number of males. But as you can see the picture of Haryana, there are 877 females to per 1000 males. So that tells that interstate variations India में बहुत ज़्यादा हैं. So this again helps the government to come up with a lot of policies and understand what is going on in the economy, right? मूविंग अहेड, फिर आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी वर्ड का मतलब हमें पता है. डेंसिटी वर्ड का मतलब होता है कितना है, कितना भरा हुआ है. दैट इज कॉल्ड डेंसिटी. सो डेंसिटी इज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. वो एरिया आप कोई भी किसी भी यूनिट में मेजर कर सकते हो. नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर मीटर, नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर हेक्टेयर, number of people living per square kilometer, whatever. So basically total population divided by the total area, इसे हम कहते हैं population density. मैंने अपनी previous वीडियोज में बताया है इंडिया हैज़ 2% ऑफ द लैंड एरिया, ठीक है. हमारे पास वर्ल्ड में जितना भी लैंड एरिया है उसका 2% लैंड एरिया इंडिया का है. इट इज़ अ लार्ज कंट्री, बट वी हैव 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. तो इससे हमें क्या पता चलता है, इंडिया में लैंड पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, एंड इससे हमारी लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है. दिस इज़ द पर्पज़ टू स्टडी द पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी ये बताता है हाउ मच योर लैंड इज़ बर्डनड. जितने ज़्यादा लोग एक लैंड पे रह रहे हैं इसका मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रेस है. हाइजीनिक कंडीशन, पीपल की लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से, ठीक है. एज यू कैन सी टुडे इंडिया में हमें दिख रहा है हमारे आसपास दैट द हाउसेज आर बीइंग बिल्ड, स्टोरी बाय स्टोरी हाउसेज बन रहे हैं. सो बिकॉज द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ इंक्रीजिंग अ लॉट. क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. So this is the status. As you can see, okay, I'll just pull this down. Yeah, as you can see, 1901 the population density is 77, and today 2011 the population density has increased by 5 times, 382 people per square kilometer. So that is a huge population density. So this tells us that India really needs to control the population, otherwise it is going to bring a lot of burden on our land, right? Moving ahead is the rural and urban population. Rural and urban population simple होता है. It is the ratio between the number of people living in the rural areas to the number of people living in the urban areas. This is called rural urban population. Purpose क्या है? Urbanization. Urbanization का मतलब होता है आपका जो इकोनॉमी है या सिटी है कितना ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रहा है. अर्बनाइजेशन इज बेसिकली सिनोनिम ऑफ मॉडर्नाइजेशन. तो जितनी ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है इसका मतलब आपकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा डेवलप होती जा रही है. सो अर्बन एंड अर्बनाइजेशन रिप्रेजेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. इट रिफ्लेक्ट्स द पैटर्न ऑफ लिविंग ऑल्सो, बिकॉज रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं. वहाँ पे लोगों का स्टाइल ऑफ लिविंग, फूड रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं. तो दिस रेशियो टेल्स अस कि इकोनॉमी का पैटर्न ऑफ लिविंग क्या है, पूरी इकोनॉमी की एग्रीगेट लेवल पे डिमांड कैसी है, कितनी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है और कितनी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है. दिस इज कॉल्ड रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन. सो दिस इज द स्टार्ट इन इंडिया. एज यू कैन सी 1900s के आसपास इंडिया में 80%, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज लिविंग इन द रूरल एरियाज एंड ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज लिविंग इन द अर्बन एरियाज. बट स्लोली एंड स्टेडली इंडिया स्टार्टेड मॉडर्नाइजिंग, एंड टुडे द रेशियो इज ऑलमोस्ट 60 to 40%. Still today majority of the people are living in the rural areas, but almost half of the people have moved to the urban areas. Migrations हुई हैं, modernizations हुई हैं, बहुत ज़्यादा industries बनी हैं, employment बहुत ज़्यादा बढ़ी है. So today the rural and urban population ratio is 60 to 40. That is the status in India. Moving ahead, last हमारा जो feature है वो हम कहते हैं literacy rate. Now this is not education, this is called literacy. Literacy का मतलब होता है the percentage of population that can read and write. Now this is not education. सिर्फ लिखना और पढ़ना इसे हम लिटरेसी कहते हैं. लिटरेसी बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है. अडल्ट लिटरेसी, यूथ लिटरेसी, एल्डरली लिटरेसी. अडल्ट इज 15 and above, youth is 15 to 24 and elderly is 65 and above.
अब पर्पस ये है कि लिटरेसी रेट को स्टडी करने का क्या मतलब है. सी, एजुकेशन इट एनरिचेस अ पर्सनस लाइफ. ठीक है, एक पर्सन की लाइफ बहुत ज़्यादा एनरिच हो सकती है अगर वो पढ़ा लिखा होगा. तो अगर एक पर्सन लिटरेट होता है, सो दैट मीन्स उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए. ठीक है, तभी इंडिया में गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन को बिल्कुल फ्री किया है. वाई? बिकॉज प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है अगर कोई बच्चा 5th स्टैंडर्ड तक भी पढ़ता है तो वो एक लिटरेट इंडिविजुअल बन जाता है. राइट, आफ्टर दैट द चाइल्ड हैज़ इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप द स्किल्स फर्दर एंड बिकम अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिटीजन ऑफ द कंट्री, ताकि वो कंट्री पे एक बर्डन ना बने बल्कि कंट्री का एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर बने. उसे हम कहते हैं लिटरेट पॉपुलेशन. ठीक है, इंडिया में क्रॉनिक पॉवर्टी और क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट है. क्रॉनिक वर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट इज लॉन्ग टर्म. क्रॉनिक डिसीज होती है, क्रॉनिक डिसीज मतलब लंबी डिसीज जो जा ही नहीं रही है. सिमिलरली इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक पॉवर्टी एंड क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट. तो अगर हम अपनी पॉपुलेशन को लिटरेट कर देते हैं तो हम इस पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से, इस लॉन्ग लास्टिंग पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकल सकते हैं. दैट इज द इम्पॉर्टेंस टू स्टडी द लिटरेसी रेट. राइट, ऑल राइट. सो दैट इज द स्टार्ट इन इंडिया. एज यू कैन सी दीज फीचर्स, यहाँ पे हमें पता चलता है कि इंडिया की कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिटरेट है. एंड दिस हैज़ बीन फर्दर बाइफिकेटेड फ्रॉम मेल टू फीमेल. एज यू कैन सी इनिशियली 1900s के आसपास मेल पॉपुलेशन भी बहुत ही कम लिटरेट है, लेस देन 10%. एंड फीमेल पॉपुलेशन इज फर्दर 0.6%. दैट इज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फीमेल्स वर नॉट इवन लिटरेट. दैट इज दे कुड नॉट इवन रीड और राइट. So with this disturbing literacy rate, how can a country progress, right? So by the efforts of the government, by making the primary education free, now this statistics is much better. Today almost 75% of the population is literate. इसमें भी bifurcation है. Males की population almost 80% literate है. On the other hand, females की population 65% literate है. इससे हमें ये भी पता चलता है that women are less educated than men. दिस टेल्स अस अबाउट द अबाउट द थाट प्रोसेस ऑफ द इकॉनमी. आज भी ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये मेंटालिटी रखते हैं दैट फीमेल एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड ऑन द अदर हैंड मेल एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द कंट्री टू डू, फॉर द गवर्नमेंट टू डू, फॉर द इकोनॉमी टू डू. और ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हमारी हेल्प करते हैं इकोनॉमी को स्टडी करने में, इकोनॉमी को समझने में, साइंटिफिकली समझने में कि किस तरीके की पॉलिसीज़ की इंडिया में ज़रूरत है. So that's it. These were the features. These were the demographic features of the Indian economy. I hope you all understand the concept. I hope you all like the video. If you like it, do give me a thumbs up. Till then, keep learning. Thank you so much.